Good morning, everyone. Today we are here with a new practice test series for Prelims 2025 Indian Economy. In this video, we covered the practice question related to the Indian economy. UPSC का one of the favorite topic है Indian economy after the history and polity. So without wasting, let's start with our first question. With reference to the measures for inclusive growth. Inclusive growth क्या होती है? The overall development of all the people. So inclusive growth, consider the following statements. First, provide bank credit to self-help group. True. Self-help group is a small groups in the village level. Second is promoting financial literacy. Yes. Promoting public-private partnership in infrastructure. True. It's also help in the inclusive growth. Providing direct subsidies to farmers and household. This is also a true statement. So, are all statements are true? Then answer will be D, all 4. Let's check it. Yes, answer is D. Next question. With reference to the financial inclusion in India. Now, this is a financial inclusion in India. Consider the following statement. Financial inclusion related to the financial development of all the people in the society. First statement, let's see. It is a process of ensuring access to financial service only to the weaker section of the society. Only. Now this is the only. जिस भी क्वेश्चन में only आता है वो अनडाउटेडली रॉन्ग ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कब किसी पोर्शन को डेवलपमेंट मिल रहा ही होगा. ये ओनली एक पर्टिकुलर सेक्शन को फोकस करके नहीं है, नॉट द वीकर सेक्शन. दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आर रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प रिड्यूस द रिलायंस इन ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेस. ट्रू. By providing the financial funds by the banks, financial literacy is the important components of financial inclusion. This is a true statement. तो हमारी 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर होगा बी. Next, go to the third question. Consider the following activities. First statement, providing micro loans to the smaller programs. अब इसमें ये स्टेटमेंट्स हैं वो हमको देखनी है. How many of the above activities can be considered as a part of inclusive financial inclusion? तो this they are the statement which is related or the part of the financial inclusion. हमको वो चेक करना है. Providing micro loans to the small borrowers. True. Offering insurance services to low income groups. This is also a true. This is inclusive financial growth increase होगी. Now third statement is facilitating digital payment infrastructure in remote area. This is also a true statement. Regulate large scale merger and acquisition. Large scale merger is not related to a financial inclusion because this is related to a basically a corporate sector. Large scale merger वहीं होता है. तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ओनली 3 सी हमारे करेक्ट है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, विच इज रिलेटेड टू अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसीज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है. प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑल्सो प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू banking facilities. This is a true statement. After that, second statement is business correspondents are employed by bank to provide branchless banking services in the rural area. The business correspondence is related to when a bank is hired a particular person to give the bank related facilities, because there is very difficult in some remote area to have the bank because there is not a infrastructure growth and there is also a funds problem. So you just hire a people which provide the same benefits which the usual bank provide. So the second statement is also correct. The Reserve Bank of India has no role.
Reserve of India have always the role when there is a financial or related to the bank thing. तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन हमारा आंसर होगा ए, फर्स्ट एंड सेकंड. ए करेक्ट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन. In the context of government initiative for poverty alleviation, what is the primary objective of the दीन दयाल अंत्योदय योजना? जो हमारी दीन दयाल अंत्योदय योजना है वो किससे रिलेटेड है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन. जो हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट है, फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड द वेज जनरेशन फॉर द पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. ए, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द अर्बन पुअर. अर्बन, ऑल द only for the urban people. Wage employment, self generation. Wrong statement. B, to provide a social safety. No social safety से तो है नहीं, because this is related to the employment generation. To organize the rural poor into a self-help group and make them capable for self-employment. This is the true statement, because in Deen Dayal Antyodaya Yojana, this is related to the employment generation for the poor peoples basically in the rural areas. Now, तो हमारी अनडाउटेडली सी करेक्ट है, बट हम एक बार डी को भी पढ़ लेते हैं. टू प्रोवाइड अ मिनिमम गारंटी इनकम. नो, मिनिमम गारंटी इनकम वो रिलेटेड टू है मनरेगा से रिलेटेड. तो हमारा सेकंड आंसर इज करेक्ट होगा. लेट्स सी. सेकंड आंसर इज करेक्ट. तो हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना फोकस ऑन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म्स फॉर द रूरल पुअर, मोस्टली विमेन. तो जो मोस्टली विमेन पर फोकस करता है. दो स्मॉल SHGs, small health groups, capacity building, access to credit, ensuring self-employment and livelihood generation. Okay, so basically it's related to a rural poor and mostly to the focus on the women role. Now next question, sixth question. What is the primary focus of the production linked incentive scheme based PLI? What is the primary focus? PLI का क्या है? तो PLI schemes is related to, let's read the options. A, boost domestic manufacture and reduce importing dependency. Increase foreign direct investment. Enhance export. D, promoting skill development. तो product link initiative is related to the boosting domestic manufacturing and reducing import dependency, क्योंकि this is related to a product मतलब somehow this is related to the manufacturing sector. तो providing a funds to the domestic level entrepreneurship and people so that we can reduce the import in our country. तो हमारा आंसर है ए, boosting domestic manufacturing, reducing import dependency, launched in 2020. PLI scheme aimed to boost domestic manufacturing and reducing import dependency. Next question. Which of the following program focus on rural infrastructure development in India? जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किससे फोकस है? फॉलोइंग प्रोग्राम्स इंक्लूड है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इसमें देखना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से कौन सी रिलेटेड है. मुद्रा योजना हमारे फाइनेंस फंड्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू बैंक्स. उज्ज्वला योजना वो सिलेंडर से रिलेटेड. अटल पेंशन स्कीम विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंस एंड फंड्स. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना इज रिलेटेड टू द हमारा सेकंड 7 क्वेश्चंस आंसर. सो नाउ लेट्स सी द आंसर. प्रधानमंत्री सड़क योजना फोकस ऑन ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इन द रूरल एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन. अब ये रिलेटेड है statements which are correct.
कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हम स्टेटमेंट वन बाय वन पढ़ लेते हैं, फिर चेक करते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम इंडिकेटर। ट्रू। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा मेजर्स करता है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होगी और एजुकेशन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंसिडर्ड हेल्थ, education, living standard. This is also a true statement. So both statements are true. Indian MPI is higher than its HDI. This is the wrong statement. क्योंकि MPI is higher than HDI क्योंकि हम MPI को किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं हाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो ये है, बट हम उनको एज अ पर्टिकुलर नंबर में मेजर नहीं कर सकते, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर विल बी 1 and 2। ए आंसर है हमारा। अब इनकरेक्ट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमपीआई मेजर्स ऑफ डेप्रिविएशन while HDI measures development. They are not comparable numerically, which I have told you. Next question, ninth question. Statement about the informal sector employment in India. इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इनफॉर्मल सेक्टर बेसिकली होता है जो रजिस्टर्ड सेक्टर नहीं होते हैं, जहाँ पे कोई फैक्ट्री चल रही है, यहाँ पे 5-6 लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट इज इनफॉर्मल सेक्टर इज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडियन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रू, बिकॉज हमारा 80 to 90% जो पीपल हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही वर्क करते हैं। नाउ सेकंड इज इनफॉर्मल सेक्टर हैव एक्सेस टू फाइनेंस टू फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज उनको सिक्योरिटी नहीं होते, उन पर बेनिफिट्स नहीं होते, उन पर इंश्योरेंस नहीं होते हैं। लाइक इन द फॉर्मल सेक्टर जॉब्स दे हैव द सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ उनके पास पर डे वर्क और वेज होता है, उसके अलावा उनके पास कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं होते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू the enterprises are regulated by the Factory Act 1948. This is also a wrong statement क्योंकि Factory Act 1948 is related to the formal sector, not informal sector. Rules and regulation made for the formal sector. तो हमारा second and third statement is wrong. तो answer will be A, 1 and 2 only. 1 only. Wrong statement का हम explanation ऊपर read कर लेते हैं। Informal worker lacks social security. Factors Act applied to formal manufacturing units only. Next question. Consider the following statement which are correct statements. So let's read our first statement. India tax to GDP ratio is higher than the OECD average. This is basically a wrong statement. So what is the OECD? OECD is the Organization for Economic Cooperation and Development, which promote basically economic growth, trade, investment, education, tax, cooperation, government, and so which basically measures the all over the development. But in GDP, we mainly measure the goods and service tax in particular year. तो जो हमारा जीडीपी वो हायर तो ओईसीडी से हो नहीं सकता, तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इंडियन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज लोअर देन द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। ट्रू, हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है वो लोअर होता है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हम ओवरऑल टैक्स ले लेते हैं, ऑल द टैक्स आर इंक्लूडेड, द लाइक सर्विस टैक्स, एक्सेस ड्यूटी, लाइक दिस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज the higher tax to GDP ratio indicates better financial capacity and tax. Yes, अगर हमारा ज़्यादा टैक्स होगा तो हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा आंसर होगा बी 2 and 3। तो चेक करते हैं बी 2 and 3। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग थी, बट हम इसका एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। Indian tax to GDP ratio is around
11 to 12%, which is lower than OECD, which is 34%. ये हमारा फैक्ट्स था, पर हमको इसको नॉर्मली भी कर सकते थे अगर हमको OECD क्या होता है इसके बारे में पता होता तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म crowding out in public finances refers to. What is the crowding out now? क्राउडिंग आउट इज रिलेटेड टू, अगर आपको नहीं पता कि क्राउडिंग आउट क्या होता है तो आप इसके वर्ड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक क्राउडिंग आउट मतलब कोई चीज जा रही है. तो हम ऑप्शंस को देख के आप नाउ टिक करते हैं कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होना चाहिए. क्राउडिंग मतलब जाना. ए, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. देयर इज अ इंक्रीज मतलब कोई चीज आ रही है तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. और गवर्नमेंट बोरिंग रिड्यूस मतलब किसी चीज का जाना, बोरिंग रिड्यूस हो रही है. द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स टू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए बी. तो लेट्स सी बी. तो हमने ये हमारा वर्ड प्लेस से सॉल्व किया क्वेश्चन, बट हमारा क्राउड फंडिंग की हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो एक बार रीड कर लेते हैं. क्राउडिंग आउट हैपन व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग रेज इंटरेस्ट रेट एंड लीविंग लेस कैपिटल फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. मतलब गवर्नमेंट का इन खर्चेज और बोरिंग इंक्रीज हो जाते हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर पे नहीं कर पाती और उनके पास फाइनेंस बचता ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सकें. दिस इज द क्राउडिंग आउट डेफिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, with reference to the term finance fiscal deficit consider the following statement. तो हमारी स्टेटमेंट हमको करना है कि वो फिजिकल डेफिसिट से कौन कौन से रिलेटेड है. तो हम उसके लिए हमको फिजिकल डेफिसिट पता होना चाहिए. तो फिजिकल डेफिसिट हमारा होता है कि हमारी जो टोटल इनकम है और जो हमारी टोटल इनकम कितनी है और हमारा खर्चा कितना है उस को हमको बताना होता है. कि अगर हमारी इनकम कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है. फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू माइनस जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है. तो हम एक बार स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. ट्रू. A higher fiscal deficit may indicate higher government borrowing need. Yes, अगर higher deficit होगा तो हमको borrowing मतलब लोग अदर कंट्री से लोन लेना पड़ सकता है क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं. लाइक कि अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं तो हम किसी अपने फ्रेंड से पैसे लेते हैं उधार. लाइक दिस. एंड दैट स्टेटमेंट इज, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. फिजिकल डेफिसिट always lead to inflation. There is always no. This is not always lead to a inflation. Sometimes it can lead, but not always. तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड. दिस मीन्स ए. It may cause but not always, like I said you. Next question 13. What is the concept of effective revenue deficit? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के लिए हमको पहले पता होना चाहिए क्या होता है. तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग डिडक्टिंग एजेंट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स फॉर द टोटल रेवेन्यू डेफिसिट. बेसिकली शॉर्टफॉल गवर्नमेंट रेवेन्यू में होता है आफ्टर डिडक्टिंग द ग्रांट्स यूज्ड फॉर द कैपिटल एसेट्स. तो हमारी ये दिस इज अ डेफिनेशन. तो हमारी ये रिलेटेड किससे है? कैपिटल एक्सपेंडिचर नो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नो, ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट्स क्रिएशन ट्रू. थर्ड इज ऑलरेडी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर होगा सी. ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स क्रिएशन. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज बेसिकली a revenue deficit minus the grant of the capital creation. These grants are revenue in form but capital in nature. 14 question which is related to a GST in India. तो जो हमारी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है अब हमको वो देखनी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं. द GST इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स GST है. यस, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स
पेट्रोल प्रोडक्ट आर इंक्लूड अंडर द जीएसटी? नो, ये पेट्रोल प्रोडक्ट हमारे जीएसटी के अंडर नहीं आते, क्योंकि पेट्रोल पे हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं और जीएसटी में हम ओनली 80% हाईएस्ट लगा सकते हैं टैक्स। थर्ड स्टेटमेंट, both the center and state have the power to levy tax, to levy GST. Yes, both center and state can levy GST. तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर होना चाहिए बी। बी हमारा आंसर है। थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है देखते हैं। द पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर करेंटली आउटसाइड ऑफ जीएसटी, दैट आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, with reference to the फाइनेंस कमीशन टू इंडिया, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फाइनेंस कमीशन से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल कमीशन हमारे आर्टिकल 280 में आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 280, ट्रू। इट recommends the division of tax revenue between the center and state, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमारा बताता है कि हमारा कौन सा स्टेट में कितना हमको बजट प्रोवाइड करना चाहिए। इट रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग इन द गवर्नमेंट? नो, दे आर नॉट बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट, दे ओनली रिकमेंडेशन दे सकता है। इट्स अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि उनको फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन माननी है कि नहीं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर विल बी ए। ए, इट रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी। 16 question, which of the following tax is not subsumed under the GST? कौन से टैक्स नहीं आते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि पेट्रोल नहीं आता है, तो हमारा ए ऑटोमेटिकली हो जाएगा ए। 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन को लिए हमको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस टर्म। तो stagflation is related to the when economical growth slow down with the higher unemployment and the rising price, means the inflation भी हाई होगा, उसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा लो होगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेरी हाई होगा। तो हमारा ऑप्शन ए देखते हैं, इट इज़ इन्फ्लेशन, यस। अनएम्प्लॉयमेंट आर बोथ हाई, तो हमारा एक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, हमको बाकी के स्टेटमेंट देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा 17 का आंसर देखते हैं ए। स्टैगफ्लेशन इज रिलेटेड टू अ स्टैग्ड ग्रोथ, ग्रोथ रुक गई है, प्लस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, माइनस वर्स्ट कॉम्बो ऑफ द इकोनॉमी। ये वर्स्ट थिंग है व्हेन द इकोनॉमी सफर टू अ स्टेग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, which describe the term twin balance sheet problem? तो twin balance sheet problem क्या होती है? Twin balance sheet is a situation when both the financial health of the bank is bad with the cooperative sector is also bad। दो जो हमारे cooperative sector and बैंक दोनों तंगी से गुजर रहे हों, फाइनेंशियल ग्रोथ वेरी लो हो, तो हम उसको ट्विन बैलेंस शीट कहते हैं। तो हम देखते हैं हमारी कौन सी स्टेटमेंट इसकी डेफिनेशन को करेक्ट करती है। तो ए आई हाई एनपीए, व्हाट इज द एनपीए? एनपीए इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन पब्लिक बैंक। तो हाई एनपीए एंड द फिस्कल डेफिसिट इन स्टेट, नो, दिस इज रिलेटेड टू बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर एंड बैंक। तो बी देखते हैं, स्ट्रेस इन कोऑपरेट एंड बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट, ट्रू। दिस इज अ बी स्टेटमेंट विच डिफाइन द ट्विन बैलेंस शीट। बी, ट्विन बैलेंस शीट कॉर्पोरेट डेट में होता है प्लस बैड बैंक लोन्स, पॉइंट द इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में ये हमको उसकी डेफिनेशन डिफाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंडियन इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? आईआईपी कौन सा हमारा आईआईपी के अंडर नहीं आता है? हमारा माइनिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, कंस्ट्रक्शन नहीं आता है। कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं आता? क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारे पास डेटा नहीं है, तो इसलिए हमने अभी कंस्ट्रक्शन को बाहर रखा है। और किसी किसी कंट्री में आईपी के अंडर कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड किया जाता है, बट इंडिया में नहीं है अभी, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। तो हमारा आंसर होगा सी। सी, आईपी ट्रैक माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन इज ट्रैक वाया जीडीपी एंड जीवीए। 20 क्वेश्चन,
विथ रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईपी से रिलेटेड था, अब ये दोबारा क्वेश्चन आईपी से रिलेटेड है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट को रेट करते हैं। इट इज रिलीज मंथली बाय द सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। ट्रू। इट यूज्ड 11-12 एज अ बेसलाइन। ट्रू, बिकॉज जो हमारे सर्वे होते हैं वो 11 और 12 ईयर के डाटा पे ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 और 12 में हुआ था। उसके बाद हमारा सेंसस नहीं हुआ ड्यू टू द कोविड, इसलिए हमारा जो बेसलाइन होती है वो हमारी 2011 हमेशा रहती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड इज इट इज मेजर्ड वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ इन द कोर सेक्टर। नो, दिस इज नॉट अ कोर सेक्टर। कोर सेक्टर में अलग इंडस्ट्रीज काउंट होती हैं और आईपी में अलग होती हैं। लाइक कोर सेक्टर में हमारे ऑयलिंग आ जाती है, कोल आ जाती है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए 1 एंड 2। E1 and 2। द थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग था? आईपी कवर्ड ब्रॉडर इंडस्ट्रीज, मतलब जो बड़ी इंडस्ट्री होती हैं लाइक इन इलेक्ट्रिसिटी, while core sector is tracked separately. Next question 21. Consider the following statement about the core sector in India. अब core sector से related हमारे पास question आ गया। तो it consists of the 9 key industries. Yes, the core sector include the 9 key industries like the coal, crude oil. And second statement is it account for around 40% of the weight in IP. True, it's account for the 40% weight. It is released quarterly by the Ministry of Finance. रिलीज होता है बट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो फंड्स प्रोवाइड करती है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये हमारा बजट से रिलेटेड होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ कोर सेक्टर। कोर सेक्टर से हमारी रिलेटेड होती है कॉमर्स इंडस्ट्रीज। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारा ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स सी द आंसर ए। Third statement is incorrect because it is released monthly by the Ministry of Commerce and Industry. Which of 22 question? Which of the following is not a part of 8 core industries that I have already read it that there are 8 core industries. तो हमारी 8 core industry में कौन सी नहीं आती? कोल आती है, नेचुरल गैस आती है, सीमेंट्स आती है, बट ऑटोमोबाइल्स हमारी नहीं आती बिकॉज ऑटोमोबाइल्स इज रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर हमारी सेकेंडरी से रिलेटेड होती है, सेकेंडरी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हमारी ये 8 कोर सेक्टर के अंदर नहीं आती। तो हमारा आंसर होगा डी बिकॉज ऑटोमोबाइल्स इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नॉट द कोर सेक्टर। तो हमारे 8 कोर सेक्टर है, हम वो देख लेते हैं। कोल, crude oil, natural gas, refinery product, fertilizers, steel, cement and electricity. They are 8 core sector जो हमको याद होनी चाहिए। Next question, our 23rd question is which of the following indicators is not used in measuring inflation in India? जो हमारे इंडिकेटर जो इन्फ्लेशन के मेजर करने में यूज नहीं होता। तो हमारा यूपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि ये बेसिकली रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज की ग्रोथ क्या हो रही है, और जीडीपी डिफ्लेक्टर तो होता है। तो हमारा आंसर होगा सी। ये नहीं होता तो हमारा आंसर होना चाहिए सी। सी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिकॉज आईपी मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नॉट द प्राइस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर 24th क्वेश्चन, इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस? तो इन्फ्लेशन टारगेट होता है, इन्फ्लेशन बेसिकली हमारा कवर आता है अंडर द आरबीआई बिकॉज इन्फ्लेशन को हमारा डिक्रीज कौन कर सकता है एट सर्टेन लेवल बाय द रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट बाय द आरबीआई। तो दिस इज रिलेटेड टू आरबीआई। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934
This is the right answer. Reserve Bank of India Act, because on RBI Act 1934 under Finance Act 2016 provide legal backing for inflation targeting. Next question. This is the 25th question and this is the last question in our UPSC test series, Indian economy. Let's read the 25th question. What is the best describe the term headline inflation? Now, what is a headline inflation? Headline inflation is basically when there is a overall inflation which covered the overall inflation in like goods, services, and it count all the inflation in within the country. The inflation include food and fuel, not only food and fuel. This is all things. So first it went wrong. Okay, year on year changing in the core inflation. No core inflation, no overall inflation. Overall inflation include all items. True. So हमारा third statement is true. D month on month changes in rural UPI. No. तो हमारा आंसर होगा C, headline inflation. C, overall inflation include all terms, items. Headline inflation, total inflation including volatile foods, fuel items. So, this end our test series. Thank you. So, if you like this video, then please like and subscribe and press the bell icon button for the next video notification, and comment below if you have any doubts or if you like this video of Indian economy. Like and subscribe.